refused to enter the Gurdwara or to wear his turban and his kada. He said there could be a time in future. He was actually apprehending, or he was showing his anxiety to the emergence of this right-wing Hindutva that is taking shape in this country, which is not allowing India to flourish as a garden which has various flowers, which have their own mehek, khushbu, their fragrance. They want to make India as one, in the sense that it is only to be one and not, they do not want to follow what is in the nature also, unity in diversity. The diverse cultures, religions that form India, that is what we have. We always propagate. Sikhi, of course, says it time and again. And therefore, we felt that we should come here and address you people. We have had to come to Delhi. Mind you, we've had these conversations. We have brought it out in the press in Chandigarh, in Punjab. The Hindustan Times has carried it. The Times of India has carried it there, local editions. We have also gone on TV, a lot of us, and social media. But we felt compelled to come here because, unfortunately, the narrative being projected today is that Mr. Gandhi has said that the Sikh is not allowed today to wear his turban or to enter a Gurdwara. It was not that. When he says this statement in the States, you have to look at the context of it. What was the idea behind it? The idea behind it was to allow all religions, cultures to flourish in this huge garden that we call India. So I think that was what he was trying to project there when he made that statement. We supported it full hog. And in recent times, as far as the kada is concerned, or the kirpan, even after his statement out there, some of our farm leaders were stopped from boarding a flight because of the kirpan. Even though in the constitution we are allowed, it is guaranteed that we can wear the kirpan and board a flight nationally. But they were stopped from boarding a flight. Our kids are not allowed to enter examination halls with their kada on. This is continuing even today. And I find it very, amusing that while, yes, some of these Sikh politicians who belong to various parties will play their role in trying to please their party line. But the amusing part I found was when a senior BJP leader goes and meets the Minister of State for Home and gives this thing that Rahul Gandhi is speaking out of his mind. He also in that same statement adds that yes, our kids are stopped from wearing kada. So he's actually confused in that sense when he makes this statement. And of course, the next thing that is more important is that a person who is of the stature of a minister in the government threatens Mr. Gandhi. I am glad that a senior leader of that same party, as the Captain Amrinder Singh, admonished Mr. Ravneet Singh Bittu for having made that threatening statement on Mr. Gandhi. I am glad that Mr. Som Prakash, who was the minister in the previous government, admonished Kangana Ranaut for the vilification campaign that she starts off time and again against the Sikh community. So we always oppose anything that happens, any vilification that will happen to us. We all stand in solidarity and we oppose such actions that are being taken by whoever. And conversely, we support anybody. We are not bothered about which party they come from. We support anybody who will speak for the Sikh right, for the rights of our minorities, because Guru Nanak's message of "Jo prem khedan ka chao, sir ka tali gali meri aao, it marg peher tarije, sir dije kaad na kije." We believe in love, and where there is love, and that love is for Akal Purukh, and Akal Purukh stands for justice, for equality, all these qualities attributed to that one supreme Akal Purukh. We stand for that, and for that the Sikh is willing to sacrifice his all to maintain that. Our ninth Nanak
did sacrifice himself for human rights values. That is well known. Guru Tegh Bahadur Sahib in Delhi itself. You all belong here. So what I'm trying to say is that we fully support Mr. Rahul Gandhi's statement, which was absolutely to the point in trying to project the problems that this right-wing Hindutva has created in the country, in trying to create that fear factor in the minorities, which is sad, because like I said, that India is a country which has diverse religions and cultures, must be respected. So, not taking too much more of your time, I would like to introduce the others on the panel here. On my right is Dr. Pyarelal Garg. He is a former Dean, Faculty of Medical Sciences, Punjab University, Chandigarh. On his right is Dr. Khushal Singh, who is the Secretary General of our Kendriya Sri Guru Singh Sabha in Chandigarh. On my left is Jaspal Singh Sidhu, who is a veteran journalist, has been with the UNI for long, and he is also associated with the Kendriya Sri Guru Singh Sabha. On his left, we are fortunate. I think it is also, in a way, we thank Akal Purkh that today in the morning, Harinder lands from the US. Mr. Harinder Singh is a senior fellow of research and policy at the Sikh Research Institute in the USA. Now he will give his perspective of what the Sikh in the USA felt on Mr. Gandhi's statement a little later. He will share with you. But it was a godsend when he called this morning, and it is good fortune that he can join us for this press conference. Least on Mr. Khushal Singh's right is Sabha Pritam Singh, who is a director of United Sikhs India. As you know, United Sikhs is a NGO which is registered with the United Nations. Our slogan is treat the human race as one. It is a humanitarian organization, and so Sabha Pritam Singh is here. He will also share his views. And on his right is Rajvinder Singh Rahi, who is a writer, editor of our Sikh Sabha Patrika in Chandigarh, also associated with the Sri Guru Singh Sabha. So I now request one more thing. I have spoken in English for the benefit of maybe the foreign audience that might come in here, but there will be others who might speak in English or in Hindi or in Punjabi. I hope everybody will be okay with that. So having said that, मैं हूँ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग नूं बेनती करना कि वो अपनी गलबात रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाबी च बोलना चाहता सी, पर असीं सारे कोई इहो ਜਿਹੇ तुस भी नहीं कि जे सामने भाषा उस तरीके नाल समझ ना आवे तो असीं जरूर अपनी भाषा च बोलना। इस करके हुण मैं हिंदी च एड्रेस करांगा, अंग्रेजी के बच्चे गल करते हैं। जब हम बात करते हैं इंसान की, तो जो सिख धर्म है, सिख धर्म नहीं, सिख फलसफा है, सिख दर्शन है। सिख दर्शन हर इंसान को बराबर समझता है कि उस भगवान ने, उस वाहिगुरु ने हर एक को बराबर बनाया है। अवल अलो एक नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उतरिया, कौन भले को मन। लेकिन इसमें कैसा हो रहा है कि हमारे देश में आज भी, पहले से ही ऐसा हो रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कोई माने कोई ना माने। और जो बहुसंख्यक हैं, उनमें अगर कोई अल्पसंख्यक के साथ खड़ा होता है तो उसको भी पीछे लेके जाते हैं। मैं उसका विक्टिम हूँ। एक एग्जीबिशन में मैंने पंजाबी में अपना कमेंट लिख दिया, टिप्पणी लिख दी, तो 4-5 RSS के लोग मेरे को बोलते हैं, वो पंजाबी हैं, भाई साहब पंजाबी नहीं आती तो हिंदी लिख देना था। मैंने फिर देखा मेरे को गलती नहीं आई, मैं चुप कर गया।
क्योंकि मेरे मन में तो, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे मन में तो ऐसा आ ही नहीं सकता। ये तो यही सिखाते हैं अपने कानून की प्रिंसिपल को कि इनको क्यों बचाते हो कोरोना में, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर मेरे को बोलते हैं भाई साहब हिंदी नहीं पंजाबी नहीं आती, हिंदी लिख देना था। फिर मैंने दोबारा देखा, फिर मैं बोला चुप कर गया। तो बोलते हैं हिंदी लिख देना, मैंने बोला मेरे को क्या बनेगा, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, पंजाबी अंग्रेजी हिंदी उर्दू, इसी कारण मेरे को उसमें महारत है। अब वो संजय तो बेवकूफ है, मैं डॉक्टर था। मेरे बोलते हैं अगर हिंदू होके हिंदी नहीं लिखेगा और कौन लिखेगा? क्या ये माइनॉरिटीज के साथ धक्का नहीं है? क्या मेरी भाषा जो है, मेरी भाषा माइनॉरिटी भाषा है, क्या मेरे साथ ये धक्का नहीं है? कोई मजबूर मेरे को कर रहे हैं 4 लोग इकट्ठे होके, क्या पंजाबी क्यों लिख रहे हैं? और क्या होता है? तो इसलिए पंजाब में अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन आया, इवन पंजाब में भी, कि बच्चे को ये कड़ा है कहना होगा, उसको एग्जाम में नहीं जाने देते। दिल्ली का आपने देख ही लिया जो इलेक्शन में जो हुआ है खालसा कॉलेज में, ये कहना हमारे 5 तख्त हैं पूरे भारत में, उनमें से एक तख्त है तलवंडी साहब, दमदमा साहब तक हम बोलते हैं, उसके फॉर्मर जत्थेदार हैं यानी केवल सिंह जी, उनको जब मेट्रो में नहीं चलने दिया, कृपा अंधेरा। अगर हमारे धार्मिक जो चिन्ह हैं उनको ऐसे होता है, अब कोई कहेगा कि नहीं जी इसमें क्या है, कोई कृपान से किसी को कुछ कर सकता है, इसमें मेरे को बोला जी कड़े में कहीं ब्लूटूथ न हो। मैंने बोला यहाँ 23 लाख बच्चे का पेपर तो लीक कर दिया इन्होंने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। आप एक कड़े में ढूंढ रहे हैं कि ब्लूटूथ होगा, कितने लोगों ने कड़े डाले थे जो इतना बड़ा पेपर लीक हुआ। सो अब क्या हो रहा है कि जो हमारे जो चिन्ह हैं, जो हमारे गुरु जी ने दिए हैं और हमारे लिए वो अनिवार्य है पहनने, उन पर सवाल उठाया जा रहा है, प्रश्न हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा कि किसी को हर एक को पकड़ के उसका कड़ा उतारा जा रहा है, हर एक की कृपा उतारी जा रही है, लेकिन ये भेदभाव हो रहा है और सरकार को उसको दिया। मैं अपनी एक बात कह के बात खत्म करूंगा, लंबा नहीं करूंगा। आज भी आप एक एडिटोरियल पढ़िए, जो गवर्नर है तमिलनाडु के, वो कहते हैं आपको किसी ने बता दिया सेकुलरिज्म, ये तो हमारी भाषा ही नहीं, कोई सेकुलरिज्म नहीं, धर्म की बात कर रहे हैं, ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। अब उनका ये आ गया, मेडिसिन में तो रोज ही बोलते हैं, इसीलिए बाबा रामदेव का। तो इसलिए जब आप भाषा पे, धर्म पे, धर्म चिन्हों पे ऐसा करेंगे, एक और बात बोलूंगा अपने प्रोफेशन से, उन्होंने बोला कि बहुत कुछ कर सकते हैं, कड़े से ऐसे मार सकते हैं। मैंने बोला आपको मालूम है कि मेडिकल लिटरेचर में कितने जो गला घोट के बारे हैं, जिन्हें से मैं दिखा सकूँ, कपड़े से वाले दिखाऊं, तलाकी से वाले दिखाऊं। सो किसी भी धागा जो थोड़ा सख्त है उससे किसी का गला घोटा जा सकता है, किसी पिल्लों से घोटा जा सकता है, किसी भी चीज से। अगर किसी ने जुल्म करना है वो किसी भी तरीके से कर सकता है, छोटे से चाकू से जुल्म हो जाता है, नाइफ से, उसमें तो ये कटार नहीं होती ना। तो इसलिए ये बहाने हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बात है। ये देश के लिए, आज़ादी के लिए मेरे को ज्यादा बड़ा दुख ये हो रहा है, जब मैं आज़ादी का इतिहास पढ़ता हूँ, पूरे देश ने आज़ादी के लिए लड़ाई की, हम इकट्ठे हुए, अंग्रेज की चाल थी इसको पाल के रखो। अगर हमको ये डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल लाला हरदयाल का आप जानती हैं कैसे उन्होंने लिया, तो ये डिवाइड करना चाहते हैं, इंसान को इंसान से घृणा करवाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है इनसे कि हम राहुल गांधी की बात नहीं करें, हमारी लड़ाई है कि हम भारत के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो नई संतान है, हम तो बूढ़े हो गए, पता नहीं कितनी देर, 10 दिन 20 दिन महीना 2-4 साल रहेंगे, लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है, जो हमारी अगली नस्लें आ रही हैं, जो हमारी अगली पीढ़ियां आ रही हैं, हमने उनके मन में बम नहीं फिट करना, हमने उनके मन में घृणा नहीं बनानी, हमने उनके इंसान बनाना है, हमने हैवान नहीं बनाना। ये हैवान बनाने की बात करते, झगड़ा तो ये है, यही झगड़ा गुरु नानक जी का था, यही झगड़ा गुरु गोविंद सिंह जी का था, यही कारण था। अब ये तो बोलते हैं ऐसे, सिंह साहब ने दी है उदाहरण, अभी हम रकावगंज गुरुद्वारा से होके आए हैं, शीश नवा के आए हैं, हमारे गुरु साहब ने, वो कोई जनेऊ पूजक नहीं थे, ना ही वो जनेऊ धारक थे, वो जनेऊ का विरोध करते थे कि ऐसे जनेऊ पालने से, कर्मकांड से कुछ नहीं होगा,
आप जो गरीब गुरबा है उसके साथ खड़े हो, जो पीड़ित है उसके साथ हो। लेकिन जब औरंगजेब उस जिले को उतारना चाहता था तो मेरे गुरु ने शीश दिया। क्या दिल्ली का हुक्मरान अपनी हुकूमत के सहारे किसी के धर्म में दखलंदाजी नहीं कर सकता। अगर हमारे गुरु ने शीश दिया है तो कोई अगर हमारे हक में बोलता है, हमारे हक में आवाज सही आवाज उठाता है कि ये हो सकता है, उन्होंने बोला हो सकता है। मैं कह रहा हूं ऐसा तो नहीं कि सबके साथ हो रहा है, लेकिन ये हो भी रहा है। ये जितने चाहे आप उदाहरण दे देते हैं। हम हर रोज हमारे पास तो फोन आते हैं कि जी ऐसे हो गया, ये केस करवा के देख रहे हैं। मैं खुद इंटरव्यू दे रहा था, मैं आपको एक लड़के बोला तेरी बुद्ध खोल कर दिखाओ क्या। तो इसलिए आज हम ये विनती करने आए हैं कि जो भी पूरी दुनिया में इंसानियत की बात करेगा, सब माइनॉरिटीज मेजॉरिटी सब इंसानों को इकट्ठा रखने की बात करेगा, जब जो पीड़ित है मिनॉरिटी, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, रिलीजियस मिनॉरिटी या रेशियल मिनॉरिटी, उसके साथ अगर कोई धक्का हो रहा है, जो भी व्यक्ति उसके हक में खड़ा होगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमारे गुरु साहब ने बोला है। अब जो भी हमारे साथ जो धक्का हो रहा है, हम पंजाबी लोग क्या हैं, हम डबल मिनॉरिटी हैं। पूरे भारत में एक ही है कश्मीर के बाद कि हम रिलीजियस मिनॉरिटी भी हैं और हम लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी भी हैं। भाषा के भी हम अल्पसंख्यक हैं और धर्म के भी अल्पसंख्यक हैं। तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? भारत में है। अगर कोई हमारे हक में हमारा हक मारा जाता है, ये हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार का हनन होता है, कोई भी, कोई ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो जो हमारे हक में बोलेगा हम उसके साथ होंगे। जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मेरे को इसमें कोई झिझक नहीं है कहने में कि उन्होंने ठीक कहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत में उनके साथ बराबर का बर्ताव नहीं होता, उनको खतरा है। और जो सिख हैं, उन्होंने सिखों का नाम दिया कि जो सिख हैं मालूम नहीं कभी इनको गुरुद्वारा में एंटर करना, पगड़ी पहनना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये डर क्यों है हमें? हम उसको क्यों ठीक मानते हैं? एक बात करते दूंगा, हमारे देश के तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं